Good morning, students. Welcome to social science class. We are doing chapter 17, fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state. In this chapter we have discussed about fundamental rights. The rights which are necessary for the growth of an individual. एक पर्सन की ग्रोथ के लिए ये राइट्स ज़रूरी हैं. एंड देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिकेबल. हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और ये 6 फंडामेंटल राइट्स जस्टिकेबल हैं. इट मीन्स वी कैन सीक जस्टिस ऑन दैट. हम उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं. अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो हम अपील कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट. क्लियर? Whether these fundamental rights are justicable, but there are some restrictions on fundamental rights. ये फंडामेंटल राइट्स जस्टिकेबल हैं, हम जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं इन पर, बट फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ कि फंडामेंटल राइट्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं उसके, तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें गिवन है. व्हाट आर दीज रिस्ट्रिक्शंस? लेट्स डिस्कस. Some restrictions are imposed upon them to safeguard the interest of entire community. फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं सो दैट पूरी सोसाइटी को सेव किया जा सके, पूरी कम्युनिटी को सेव किया जा सके. These limitations are necessary for the meaningful enjoyment of these rights. However, these restrictions or limitations should be reasonable and in the interest और पब्लिक ऑर्डर. ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और लिमिटेशंस हैं ये रीज़नेबल हैं एंड दीज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर. लोगों की भलाई के लिए, लोगों की और सोसाइटी के, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, वेलफेयर के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस यूज़ की जाती हैं. Here are some examples of restrictions. So what are these restrictions? Let's discuss. We have a right of freedom that we can move freely anywhere in our country. हम अपनी कंट्री में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, कोई restrictions नहीं हैं. But there is some restrictions. If a person is infected by some disease and this disease could spread through infection और अगर publicly हम किसी के contact में आते हैं तो उससे ऐसी कोई disease spread होती है, so then the free movement of people can be restricted. तब free movement restrict कर दी जाएगी. We can see this in these days. इन दिनों में हम देख रहे हैं that there is social distancing and lockdown. Why the government is doing all these things? Just to save ourselves, just to save us, to save our lives. Okay, so there is lockdown. It means we can't move freely. We have to stay at home to save ourselves, to save others. Because जो कोरोना है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती है. ओके, तो ऐसी डिजीज़ से सेव करने के लिए फ्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, रोक दी गई है. नेक्स्ट इज़ freedom to practice any profession doesn't mean to take up gambling, smuggling, hoarding or any other profession which is injurious to or hazardous to the society. अब हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं.
It is written in our constitution, but it is not like that. आप कहें कि हम गैमलिंग कर सकते हैं, स्मगलिंग कर सकते हैं और किसी को किल कर सकते हैं, ये वाला प्रोफेशन ले सकते हैं, ठीक है, या और बहुत सारे जो गलत हैं, चोरी कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस आर देयर. तो दीज आर इलीगल वर्क. ओके, सो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन डजंट मीन कि हम इलीगल वर्क करें, कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाए. ओके, nobody can claim to be a doctor or lawyer unless she has the essential qualification. If we want to be a doctor, we have to do the studies. ठीक है, हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा टू बी अ डॉक्टर. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मीन टू स्पीक और राइट एनीथिंग यू फील लाइक. एनी थॉट और एक्सप्रेशन that disturb public peace or harmony or instigates communal violence will not be allowed. We have freedom to speech, freedom of expression. So it doesn't mean कि we can speak ill words or we can speak anything for the other religions or caste. Okay, और ऐसे words जो रिवॉर्ड्स में हेल्प करें और लोगों में फियर स्प्रेड करें. ओके, तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन और दिस टाइप ऑफ थॉट्स वर रिस्ट्रिक्टेड और आर रिस्ट्रिक्टेड इन आवर कंट्री. दोज हार्म द हार्मनी इन आवर सोसाइटी, दोज वर्ड्स दैट हार्म्स आवर पीस. तो ऐसे वर्ड्स जो हमारी कास्ट, हमारी कम्युनिटी, हमारे रिलीजन, हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, इस तरह के कोई भी वर्ड्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो हमें हार्म पहुंचाए. क्लियर? सो दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस दैट आर ऑन फंडामेंटल राइट्स. वी हैव टू just practice our fundamental rights. We can use these, we can enjoy these fundamental rights, but in limits. लिमिट्स के अंदर हम हर काम कर सकते हैं. अगर हम अपने लिमिट से बाहर जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, रोक दिया गया. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स.